Good morning, students. Welcome back to the online session of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I just requested to you, stay home, stay safe. Because if you've seen that, there is a very first COVID-19 virus that will be spread out into your nearby places. So unnecessary, don't go outside your homes. Also avoid to go into the crowded places. Also avoid to go into a form of friend circles and make a distance between minimum 6 feet to one another. And if it should be necessary, have to go outside homes, use always be face mask covers, take sanitizers with you, always be wash your hand at a specific time of interval. So stay home and stay safe. The students that we are discussing about the today's lecture, that is a syllabus of your NCERT chapter number 12 electricity, that we are discussing about our today's session. So on the first part of this electricity, we have to discussing about these are the topics which we write onto the blackboards about the electric charge, force which is extracted between the two electric charges, what is called electric current, differentiation between the electric current and the flow of current, as well as derive the formula of electric current, and also we have find how many electrons are there into the 1 coulomb of electric charge. Okay, so this we have to discussing onto the today's lecture. So students, let we have know that electricity is a very much important asset in our living life right now, because if you see that electricity is used everywhere, maybe your home appliances are there, maybe your kitchen appliances there, maybe in a bedroom, schools, offices, industries, all this type of the premises mostly they have to use this type of the substances which is generally run onto the part of the electricity. So generally you are sitting into the room, you are using the televisions, always be using the fans, AC, refrigerators. These are the top appliances which we use in our daily life. Also while seeing the kitchens, micro ovens are there. So each and every appliances also you have to use the mobile which also used to as a part of the charging which need the electricity. So mostly our life is dependent on the mostly of this type of appliances who can be run through the electricity. So today we have discussing about the more detail about this concept of what is called electricity. So in which we are discussing about today is called electric charge. So what is the electric charge? Electric charge is an intensive properties of electron and proton. Generally, electric charge as an intensive property of electron and proton, because if you know that each and every atom have a center of substances that is called nucleus. And nucleus mainly contain the positive substances proton and also the charged substances that is called neutron. And into the outer orbit there is an electron that will be rotated around to the nucleus. Okay. So electric charge is an intensive property of electron and proton. So as a mass of property of this type of substances of electric charge is generally a property of the particles of the electrons and protons which is available into the substances. Okay, the number of such substances having the electrons and protons, these are the particles which have generally a mass property of this type of substances are generally considered as the electric charge. Okay, so the electric charge having two types, दो तरीके के electric charge होते हैं. In the two types, one electric charge is called as a positive, it is called proton. Another is called as a negative electric charge, that is called electrons. So एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. There is two type of the electric charges. One is called positive charges, another called is a negative charges. So positive charges जो होते हैं वो प्रोटॉन से कंसीडर किए जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कंसीडर किए जाते हैं. कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है, कन्वेंशनली द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सब्स्टिकुलर पॉजिटिव सब्सटेंस को प्रोटॉन कहेंगे और नेगेटिव जो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. अभी इसका जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम मेजर करते हैं कूलम में, कैपिटल सी आप उसको लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो कैपिटल सी से डिनोटेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कूलम. सो एसआई यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड कूलम व्हिच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल सी. तो अभी जो ये जो सब्सटेंसेस जहां पे हम यूज करते हैं, प्रोटॉन आप यूज करते हैं एज अ पॉजिटिव सब्सटेंस, एक आप इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव सब्सटेंस. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के जो चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं. द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी सेम इनटू द ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस. अभी यहाँ पे अगर आप कंसीडर करें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से तो दोनों का जो मास कंसीडर करेंगे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो होता है क्या 1.6 into 10⁻⁻16 कूलम. प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है
वो -1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, किसमें मेजर करते हैं हम? कूलम के अंदर मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एज अ मास प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरली a property of the particles of by electrons and protons of a substance. The electric charge generally having a two type, positive electric charge, negative electric charge. पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोटॉन कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहेंगे। दोनों का जो मास होगा प्रोटॉन का 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, और जबकि इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 into 10⁻⁻ कूलम। इसका जो SI यूनिट होता है उसको हम कूलम कहते हैं, जिसको आप कैपिटल C से डिनोटेट करते हो। तो ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हो गया। अभी जब हम मैग्नेटिज्म, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिज्म इन द प्रीवियस क्लास, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। द मैग्नेटिज्म हैविंग अ टू फॉर्मेशन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों पोल्स पे, नॉर्थ और नॉर्थ पोल हो, साउथ या साउथ पोल हो, या नॉर्थ या साउथ पोल हो, तो उसमें एक रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स ऐसा जनरेटेड होता है। तो जो सिमिलर टाइप्स के जब पोल्स होंगे तो रिपल्सिव फोर्स जनरेटेड होगा, और जब अपोजिट टाइप्स के पोल होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है। वही कॉन्सेप्ट जो है एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया है कि फोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्ज। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सट्रैक्टेड। सो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, या तो प्रोटॉन हो सकता है या तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। So during the interaction between the two electric charges, both they have to be implemented a force to each other. दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। So while interaction of this proton and electron to each other, it generally having to be exerted the force to each other. So during the interaction among this type of electric charges, the repulsive force that have been extracted between the two charges like electron or proton, अगर दोनों सेम तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे तो कौन सा फोर्स जनरेटेड होगा? दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। और अगर दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे, मे बी द अट्रैक्टिव फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दे हैव टू बी इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेटेड होगा, और जो सेम तरह के चार्जेस अगर इंप्लीमेंटेड होगा तो रिपल्सिव फोर्स जनरेटेड होता है। द फोर्स दैट एक्सर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड एज अ कूलम फोर्स। ये दोनों जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन है व्हाटएवर, या तो रिपल्सिव फोर्स लगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगे, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मेजर किया जाता है? कूलम से मेजर किया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फोर्स होता है उसका कूलम फोर्स भी कह सकते हैं। सो व्हिच कैन बी जनरली कैलकुलेटेड बाय द स्पेसिफिक फार्मूला, जिसको स्पेसिफिक इंप्लीमेंट किया चार्ल्स कूलम ने। द साइंटिस्ट हुज नेम वाज चार्ल्स कूलम। उन्होंने ये जो फोर्स लगते हैं, जो रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जब लगते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस पे, तो उसको फाइंड करने का एक फार्मूला अप्लाई किया था, जिसको हम लिखते हैं F = Q1 × Q2 upon R²। ओके, F = Q1 × Q2 upon R²। F फॉर्म इज K लिख सकते हैं, F = K इज अ कांस्टेंट फॉर्मेशन। तो जो Q1 और Q2 जो है वो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है। F जो होगा उसको आप कूलम फोर्स कहेंगे, जो फोर्स एक्सचेंजेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जो आप लगेंगे चार्जेस। तो F = कूलम फोर्स इज K is part of the constant, R is what? That is the distance between the two electric charge। दो इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं वो डिस्टेंस के लिए R² हो सकता है, और Q1 और Q2 जो है वो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो by using this formula you can find the how much amount of coulomb force that can be extracted between the objects having a two different electric charges। क्लियर? इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही फार्मूला आपने आगे भी पढ़ा है, F = G(m1m2/r²), जो ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला है, जो प्रीवियस ईयर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। F = G(m1m2/r²), वो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला है। चलिए, ये आपको दो टॉपिक समझना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। उससे पहले एक चीज, एक जनरल प्रैक्टिकल्स जो है हम डेली लाइफ के अंदर, ऐसा पहले भी आप यूज कर सके व्हेन यू आर इन अ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, के व्हेन द ग्लास रॉड दैट शुड बी रब्ड विद द सिल्क और मे बी अ प्लास्टिक रॉड दैट रब्ड विद द फर, व्हिच इज जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्टेन ऑन देम। अभी जब आपको पता है कि जैसे ग्लास रॉड को जैसे आप सिल्क के साथ रब करते हैं, या प्लास्टिक का जो रॉड है उसके फर के साथ रब करते हैं, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड होता है।
होता है। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली एक्सपेरिमेंट में किया होगा। So when the glass rod that rub with the silk, सिल्क के साथ जैसे ग्लास रॉड का रब करते हैं तो ग्लास का जो रॉड होता है it loses the electrons. Glass rod always will loses the electrons and becomes the positively charged. क्योंकि ये टॉपिक हमें पता है, जब हम मेटल और नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर्स, तो मैंने आपको इसमें भी बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज में आता है और कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज में आता है। तो जैसे ही आप इस तरह के जो ग्लास के रॉड को रब करते हैं विद सिल्क के साथ, तो वहां पे क्या होता है कि ग्लास का रॉड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्टेड होता है। सिमिलरली जो प्लास्टिक का रॉड होता है उसको रब करते हैं फॉर के साथ, तो इट जनरली हैविंग टू बी रिसीव द इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। तो जैसे ये दोनों जो रॉड्स होते हैं बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, एक नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, तो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए, तो दे आर जनरली ब्रिंगिंग टू नियर हिमसेल्फ, दे जनरली हैव टू बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर दोनों को एक दूसरे को नजदीक लाया जाएगा तो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होगा? अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, अट्रैक्शन जनरेट होगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। बहुत चीजें हम समझते हैं इन द डेली लाइफ के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट ये है, और व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? एक्चुअली if we are discussing about the electric current, how you can be define ki what is the actual definitions about the current, how the electric current that can be implemented is a form. So basically we consider that the structure of every atom are generally a charged particles like proton and electron. Every atoms generally यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर होगा एटम का, दे हैव ऑलवेज बी अ चार्ज पार्टिकल जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे ही, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होता है वो उसके सेंटर ऑफ मोशन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके आउटर ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है। तो एवरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैविंग टू बी अ चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज अवेलेबल इन इट, इनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं और उसके हिसाब से वो इंप्लीमेंटेशंस करते हैं। सो इन द एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के जो आउटर ऑर्बिट होते हैं उस आउटर ऑर्बिट के अंदर उसके आसपास रोटेट करते हैं, एंड एज दे आर रिमेन बाउंडेड इनटू दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसके वजह से वो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसको बाइंड करके रखता है। जैसे ग्रेविटेशन का एक रूल है कि ग्रेविटेशन के अंदर जो सेंट्रोइड वैल्यू होती है, यानी कि सन इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रोइड वैल्यू, और उसके आसपास जो ऑर्बिट्स के अंदर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, प्लैनेट्स है, वो रिवॉल्व करते हैं। मींस व्हाट, सन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह के बाइंड करके रखता है बाकी के प्लैनेट्स के, एज अ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन होता है वो बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखें तो एटम्स के अंदर जो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ मेटालिक मटेरियल्स, जो मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, मेटालिक सब्सटेंसेस के अंदर आप देखो तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो अट्रैक्शन जो दो फोर्सेस का होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर ऑर्बिट के अंदर हैं, मेटल्स के अंदर क्या होता है, व्हाई दे आर कॉल्ड मेटल्स, क्योंकि उनका आउटर ऑर्बिट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमेशा जो मेटालिक सब्सटेंसेस होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहे हैं तो उनके आउटर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर ऑर्बिट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी को पॉजिटिव करते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है प्रोटॉन का वो इंप्लीमेंटेशन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो लॉस करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस आर वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो जब इसका फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मेटालिक मटेरियल्स, the electrons get separated from their parent pair। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसके अंदर से सेपरेटेड होता है, क्योंकि वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो सेपरेटेड होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल्स, इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेटालिक प्रॉपर्टी आर रिस्पांसिबल टू कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर होता है वही वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करके ले जाता है। जिससे आप देखें तो कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, सब प्लेंटी ऑफ जो मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें इस तरह के सच प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन टेक इजीली फ्रॉम दिस मटेरियल्स टू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए आप इसको कंडक्टर कहते हैं। तो metallic materials having such a plenty of free electrons, and this type of free electrons are responsible to carrying the electric current from one point to another point. So such materials are called as a conductor. Similarly, जैसे आप देखिए wood है, प्लास्टिक है, रबर है, इस तरह के जो substances होते हैं जिसमें, तो this type of substances do not having a such kind of the free materials, जिसमें इस तरह का free substances नहीं होते electrons के. So this type of substances do not having a free electrons, so they do not carry the electron of electricity, so they are called as a insulator. तो जो substances इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है वो इंसुलेटर होता है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्लियर? These are the three topics. One is called electric charge, force extracted between the two electric charges. Next is called electric current. चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कशन करना है वो है डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट, जो भी आप कह सकते हैं। देखिए, इन द स्टार्टिंग फॉर्म्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड, तो अर्लियर द साइंटिस्ट दैट कैन बी बिलीव दैट कि इलेक्ट्रिक करंट आर जनरली एज अ रिजल्ट्स दैट ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, सो पहले जो साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो स्पेसिफिकली फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो रिजल्ट है, इट जनरली हैविंग ड्यू टू अ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी प्रोटॉन के जो मोशन से पॉजिटिव चार्जेस, उसके वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैविंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज से वो जनरेट होते हैं, was considered as the direction of electric current. तो ये जो पॉजिटिव के लिए जो प्रोटॉन एक स्पेसिफिक पार्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, तो पहले साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मोशंस होता है दैट में जनरली जनरेट थ्रू द प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, इसीलिए कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड आउट किया? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन वाज द साइंटिस्ट हु फाउंड द इलेक्ट्रॉन्स। After the inventions of the electrons, it was known that the electric charge is generally generated due to the motion of the results of this negative electric charges, that is called electrons. So electrons that move from the charges terminal to positive terminals, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो होता है। तो एट प्रेजेंट अभी हाल में जो है we also take as an electric current to the direction of the motion of positive electric charges, which is known as a conventional electric current. इसीलिए आप उसको क्या कह सकते हैं? It is a part of conventional electric current. So direction of electric current is always be to opposite to the direction of flow of electron. तो उससे हमेशा opposite होता है उसका flow of electron. तो that is about the electric current of the flow, कैसे implementation होता है। चलिए अभी हम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का डिराइव कर रहे हैं कि हाउ वी कैन बी डिराइव द इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट आप किसको कहेंगे? एज अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन। अभी आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ के आए, सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? हाउ यू कैन बी डिफाइन एज अ फॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? सो सिंपल डेफिनेशन इज देयर कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरली रिस्पांसिबल टू कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर देयर, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, one is called positive electric charge, another is called as a negative electric charge, is a part of the protons and electrons. So the net quantity of electric charge that flow during the specific time of interval in a cross section area, that is called as the electric current. So electric current, it means the flow of an electric charge. कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, जो कंडक्टर है उसके अंदर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू करंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, ऐसा आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोटेट करते हैं? Q से डिनोटेट करते हैं, टाइम को T से डिनोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोटेट करते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते हो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ओके,
So the quantity of electric charge that passes through a specific time of interval through a cross section area, that is called as the electric current. It means the quantity of flow of electric charge is called as the electric current. So I is equal to Q upon T. Now अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, Q को आप किसमें मेजर करते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज मेजर इनटू द कूलम, और टाइम को किसमें मेजर करते हो, सेकंड में. तो I का जो फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट कूलम अपॉन सेकंड, इसका जो कूलम को C लिखते हैं कूलम अपॉन सेकंड. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है कूलम अपॉन सेकंड होता है. बट अ साइंटिस्ट whose name was the Andrew Ampere, उसके लिए भी उन्होंने एक स्पेसिफिक ऐसा यूनिट दिया था. तो इलेक्ट्रिक करंट I का जो ऐसा यूनिट होता है I is equal to E, that is called ampere. तो ऐसा यूनिट आप उसका एम्पियर में लिख सकते हो. So it means कि 1 coulomb of charge that flowing through any cross sectional area of conductor into the 1 second, 1 coulomb चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो करता है तो उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ऐसा कह सकते हैं. तो इसमें दो तरह के उसके ऐसा यूनिट भी होते हैं, इसको एक मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी आप कह सकते हैं. 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर. सो 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को अगर आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ एम्पियर. सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. तो वो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप Q कहते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय द Q having to be a formation of any cross section area of conductor, then we say that I is equal to Q upon T. So, but हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से पास आउट हुए हैं. How many number of electron that is passes through the cross section area. So if the number of electrons that have been passing through any cross section area of the conductor, that is time t. Okay. So number of electron मतलब क्या, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया. So Q के जगह पे आप लिख सकते हैं Ne. You have to write there is Q is equal to Ne upon formations on a passing through the specific area. So आप लिख सकते हो Q is equal to Ne. Okay, number of electrons. So अब इस फॉर्मूला में इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, I is equal to Ne upon T. ठीक है. So जो जनरल इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, -1.6 into 10⁻⁻ कूलम के फॉर्मेशन में है. तो आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अगर नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी पासेस थ्रू 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो 1 कूलम एनर्जी के अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, अगर वो फाइंड करना है तो फार्मूला क्या होगा, Q is equal to Ne. ऐसा फार्मूला होता है Q is equal to Ne. तो मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे पास हुए वो मुझे फाइंड करना है. तो n is equal to क्या हो जाएगा, Q upon E. क्या हो जाएगा, Q upon E. तो Q यानी क्या, 1 कूलम चार्ज, Q की जगह पे आप 1 लिख दीजिए, अपॉन E कितना है, -1.6 into 10⁻⁹ -1.6 into 10⁻⁹. इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 6.25 into 10⁻18. ऐसा आप लिख सकते हैं 6.25 into 10⁻18. सो ऐसे जो फॉर्मेशंस होते हैं, ऐसे फॉर्मेशन के हिसाब से आप वैल्यू को यूज कर सकते हैं 1.6 into 10⁻⁹ के हिसाब से. क्लियर. सो आई होप कि आज का जो सेशन अभी आपने पढ़ा है अबाउट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे फोर्स एक्सट्रैक्टेड होता है, these are टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो आई होप कि ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा आपके लिए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से रूप में से रिवाइज करें, नोटबुक्स में इसके आंसर्स अपने हिसाब से लिखने को ट्राई करें. जब हम कल मिलेंगे दूसरे सेशन में तब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में, और दूसरे जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है उसके अलावा ओम्स के लॉ है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, नोटबुक में लिखें, अपने नॉलेज को अपडेट करें बाय रीडिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय.